Good evening, ladies and gentlemen. On the behalf of DAN College of Education for Women Nawashahar and CTEF Punjab and Chandigarh chapter, I welcome you all on the 7th and concluding day of this 7-day workshop on lesson planning. I extend my heartiest welcome to our chief guest, Shri Vinod Bhardwaj, Acting President, Arya Samaj Nawashahar and Vice President, DAN College Managing Committee. Our guest of honor, Dr. Khushwinder Kumar, President, CTEF Punjab and Chandigarh Chapter and Principal, MM Modi College, Patiala. Dr. Meenakshi Sharma, Secretary, DAN College Managing Committee. Dr. Pragat Singh Archa, Secretary, CTEF Punjab and Chandigarh Chapter. And our resource person of today's session, Ms. Monica Mahajan, Assistant Professor, Sant Baba Hari Singh Memorial College of Education, Mehalpur. Yesterday we had wonderful session on the micro teaching. Dr. Pooja Verma was our resource person. She wonderfully explained the skill of explanation and skill of stimulus variation. Now, before proceeding towards today's session, I request Ma'am Ranjana Khanna to present report for the yesterday's session. Ma'am Ranjana Khanna, please. Good evening to all of you. Today, I am glad to present the report of 6th day of 7 days workshop based on lesson planning organized by IQAC of DAN College of Education for Women Nawashahar in collaboration with Punjab and Chandigarh chapter. First of all, Dr. Vikas Teji introduced the resource person, Dr. Pooja Arora, Assistant Professor, MGM College of Education, London. Dr. Pooja discussed the meaning of micro teaching. He explained the skill of explanation and stimulus variation. She demonstrated the format of both skills in proper way by showing the PowerPoint presentation. After that, question answer session was there. All the participants was very active. They sent their questions in chat box and the resource person satisfied their queries. At last, Mrs. Karna O'Brien thanks the resource person. Overall, the session was excellent. Now it is over to Dr. Vikas Teji. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thanks a lot for the wonderful report of the yesterday's session. Now again, today we are going to have session on the micro teaching, and the skills which we are going to take today are skill of introducing the lesson and skill of questioning. Our today's resource person is Miss Monica Mahajan, Assistant Professor at Sant Baba Hari Singh Memorial Khalsa College of Education, Mehalpur. She is MSc Physics, MA Psychology, MEd. She is pursuing PhD from Punjab University, Chandigarh. She has more than 15 years of teaching experience. She has written 24 research articles in journals of national and international reputes. And she also has constructed and published 2 psychological tools. She also acted as a resource person in many national and international conferences. And she has so much passion and love for the teaching that she has left her job as a principal at Sant Baba Hari Singh Public School, Mahalpur, to rejoin his current position of assistant professor at Khalsa College of Education, Mehalpur. Now I request Madam Monica Mahajan to carry on the proceeding. Ma'am Mahajan, please. Thank you so much, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Very much audible. Thank you so much, sir. Thank you so much for the kind words, sir. And now I'm going to share my screen.
Okay, screen is visible to all? Yes, ma'am, it is visible. Okay, thank you so much. And which language should I use, sir? I think, ma'am, participants are requesting for mixed language, ma'am. Okay, I will be using bilingual language then, Hindi and English, okay? Okay. Yes. Good afternoon to all. Myself, Monica Mahajan, Assistant Professor, SPHSM Khalsa College of Education, Mahalpur. And the topic which I am going to discuss with you is few micro teaching skills. But before moving towards micro teaching skills, I just want to share with you a stages of a lesson. Okay, any lesson which we every lesson is divided into various stages. Okay, first of all, there is a planning stage, there is introductory stage, presentation stage is there, and finally the closing stage is there. Whether the lesson is of higher class or of lower class, generally these stages are always there. And for every stage, number of skills are required. Okay. In the next slide, you will see the concept map in which I'm trying to tell you how many skills are there that we require to master. Okay. First of all, there is planning stage. And for planning stage, we have writing instructional objectives, selecting the content, organizing the content, selecting the audiovisual aids. These are the things that we need to do beforehand, before coming to the class. And these are also known as pre-instructional skills. Then comes our introductory skills, in which there is creating a set for introducing the lesson and introducing the lesson. This here the role of a teacher starts. She enters the classroom, and then there is a presentation skill. Presentation skill, in which there are number of skills are there. There is questioning skill, there is presentation skill, there is aid using skill, and management skill. And further, these skills are divided into so many micro teaching skills. That is skill in fluency in questioning, probing question, response management is there. Presentation skill is divided in explanation, discussion, lecturing, demonstration method is there, illustration with example is there. And teaching aid skills, there is using teaching aid, how we are going to use a blackboard, how I'm going to reinforce my students, what kind of stimulus variation I'm going to use, how I'm going to use a silence and a non-verbal cues of the student. Then comes the last stage, closing stage, in which generally how we are going to conclude our chapter, what kind of things I'm going to repeat, what kind of assignments I'm going to give to my students, what the evaluation criteria I'm going to use for my students, and how I'm going to diagnose the problem, and what the remedial measures I'm going to give to my students. यहाँ से आप सबको क्लियर होगा कि 4 स्टेजेस की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज प्लानिंग स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज, प्रेजेंटेशन स्टेज एंड क्लोजिंग स्टेज. इनको कई बुक्स में स्किल्स के फॉर्म में भी दिया जाता है. प्लानिंग स्टेज इज अ पार्ट ऑफ प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल, introductory and presentation stage is a part of instructional skills, and closing stage is a part of post instructional skill. अब जब हमने बच्चे को लेसन प्लान सिखाना है तो हमने इन स्टेजेस के बारे में उसको नॉलेज देनी है, और उसको हम चाहते हैं कि जब वो एक स्टेज पे काम करेगा तो उसको ये सब स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए. पर हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं. वी हैव द लिमिटेशन ऑफ टाइम एज वेल एज फंड्स. तो हम इन सारी स्किल्स पे बच्चों को मास्टरी नहीं करवा सकते, बिकॉज यू नो कि माइक्रो टीचिंग स्किल्स जो है उसके अगर हम साइकिल की बात करें तो एक जो साइकिल है दैट मिनिमम टेक्स 36 मिनट्स. एक बच्चे को एक स्किल सिखाने के लिए मिनिमम 36 मिनट्स चाहिए, एंड दैट टू इन आइडियल सिचुएशन जहां पे हम ये मान के चलेंगे कि अगर हमने बच्चे को एक बार वो स्किल बताई ही विल मास्टर दैट. ओके, बट दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर दैट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इतनी सारी स्किल्स बच्चों को सिखाने से उनको हम सिर्फ कुछ कोर स्किल्स सिखाते हैं. ठीक है, कुछ स्किल्स हमने प्लानिंग से ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन में से ले ली, प्रेजेंटेशन में से ले ली, एंड क्लोजिंग में से ले ली. तो वो हमारे पास कोर टीचिंग स्किल्स आ जाते हैं, जिसमें जर्नली हाउ टू राइट एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल्स या प्लानिंग स्टेज. देन देयर इज स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, skill of questioning, skill of explanation, skill of stimulus variation, and skill of reinforcement. This is a part of actual teaching, instructional skill. Okay, and the last one is skill of closure. तो
इतनी जनरली आपके सिलेबस में भी यही स्किल्स ज्यादातर स्पेसिफाइड होती हैं, पर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड सिर्फ इसीलिए दिखाई है कि ये आपको क्लियर हो कि एक या दो स्किल्स या 10 स्किल्स नहीं है, देयर आर मोर देन 20 स्किल्स। कई बुक्स में तो 29-30 स्किल्स भी स्पेसिफाइड है, बट वी विल जनरली बुक्स में सिलेबस में यही 6-7 स्किल्स स्पेसिफाइड होती हैं। तो जो मुझे स्किल्स असाइन की गई हैं, दैट इज द स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन and skill of question. Now I will start my topic, that is skill of introduction. Okay. First of all, we will discuss what is introduction. जैसे अभी ये वर्कशॉप स्टार्ट हुई तो विकास सर ने मेरी एक इंट्रोडक्शन दी। अभी आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। सर की इंट्रोडक्शन देने के बाद आपका कुछ इंटरेस्ट, कईयों की अटेंशन मेरी तरफ आई होगी और कुछ इंटरेस्टेड होंगे सुनने के लिए। तो बेसिकली सेम चीज क्लास में चलती है। जब टीचर क्लास में टॉपिक पढ़ाना चाहता है, उससे पहले वो उस टॉपिक को बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टीचर इस स्टेज को मास्टर कर गया तो उसका जो आगे काम है वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट बन जाएगा, बच्चे टीचर को अटेंटिवली सुनेंगे, तो वो आधे से ज्यादा काम हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो अगर टीचर अपनी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन को मास्टर कर लेता है, और ये स्किल्स जो है इनमें स्किल मतलब कोई भी माइक्रो टीचिंग स्किल्स है, इसके लिए आपको स्किल्स तो चाहिए, और ये अपने आप में एक आर्ट भी है। कैसे, कौन सा तरीका हम यूज करेंगे अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करने में, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अभी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू एस्टैब्लिश कोग्निटिव एंड इफेक्टिव रैपो विद द स्टूडेंट्स। जो टीचिंग है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, कि हम क्लास में गए, बोले, पढ़ाया और आ गए। हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम प्रेजेंट का पास्ट के साथ कनेक्शन लिंक बनाते हैं, हम बच्चों का अपने साथ एक लिंक बनाते हैं, और जब ये लिंक होगा, एक अफेक्शन होगी, एक बॉन्ड होगा, तो वो लर्निंग हमेशा ही बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। तो एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि वो बच्चों के साथ एक कोग्निटिव या अफेक्टिव रेपो बनाए। सेकेंडली, टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब हमने कोई टॉपिक स्टार्ट करना है, अगर तो बच्चे की अटेंशन हम ग्रैब कर पाए, कैप्चर कर पाए, तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें बार बार कहना नहीं पड़ेगा, ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। ये आप सबने लर्निंग में पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में आता है कि प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, और उसमें उसने प्राइमरी लॉज की बात की थी। कोई आप में से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि प्राइमरी लॉज कौन से थे? एनीबडी? एनीबडी? प्राइमरी लॉज थॉर्नडाइक ने जो दिए हैं, ओके, चलिए। लॉ ऑफ इफेक्ट, यस, लवप्रीत कौर इज राइटिंग लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, हाँ जी, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये जो लॉज हम पढ़ते हैं, यहाँ जो चीजें आपको साइकोलॉजी में पढ़ाई गई हैं, उनको हमने यूज भी करना है इन आर एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। तो जब हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेसिकली हम कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं? लॉ ऑफ रेडीनेस। बच्चे को हम मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो चीज को इजिली सीख सके, ठीक है। टू क्रिएट प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम में जब तक एक एनवायरनमेंट नहीं होगा कंड्यूसिव, जिसको हम कहते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का होना, कि बच्चे प्रिपेयर्ड हैं सीखने के लिए, ठीक है, मेंटली वो आपके साथ इन्वॉल्व हैं, तभी वो आगे लर्निंग प्रोसीड हो पाएगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। टू एक्सपोज द स्टूडेंट टू एसेंशियल कंटेंट। इन स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हम बच्चों को एक्सपोजर देते हैं कि अभी फ्यू मिनट्स के बाद हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स हम क्या चीज पढ़ेंगे। जैसे मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, देन आई टोल्ड यू ओके टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से हमें बच्चे को एक्सपोजर देना है। टू एस्टैब्लिश द लिंक ऑफ द प्रीवियस नॉलेज विद द प्रेजेंट टॉपिक। एक लिंक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है। उस नॉलेज को हमारे कॉन्शियस लेवल तक लेके आने के लिए हमें एक लिंक को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। पियाजेट ने भी इस चीज की बात की।
प्याजेट ने एक थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और उसमें उसने इस चीज की बात की है. एनीबडी कैन मैसेज कि किस चीज की बात की थी प्याजेट ने जो लिंक करता है पास्ट को प्रेजेंट के साथ? आई वॉन्ट द एक्टिव स्टूडेंट्स. ऑडियंस जो है एक्टिव हो तो मजा आएगा, ताकि इंटरैक्टिव हो सके. एनीबडी स्कीमास की बात की है? यस. और स्कीमास के अलावा जसबीर कौर जी कह रहे हैं स्कीमास की बात की है. यस. गुरलीन कौर जी कह रही हैं अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन की बात की है. वेरी गुड. एसिमिलेशन की बात जब हम करते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि हमें जो बच्चे को पुराना आता है वो उसको बेस बनाता है कुछ नया सीखने के लिए. ठीक है. प्याजेट ने अपने कोग्निटिव फंक्शनिंग में बात की थी एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन की, और यहाँ पे टीचर की ड्यूटी है वो चीजों को लिंक कर सके ताकि बच्चा चीजों को असिमिलेट कर सके और फर्दर उनको अकोमोडेट कर सके. ओके. तो डेवलप द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक. जब हम लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं तभी बच्चे का एक इंटरेस्ट बनना चाहिए. तो लेसन को इंट्रोड्यूस ही इस तरह से किया जाए ताकि बच्चा उसको उसमें इंटरेस्ट ले. ओके. एंड टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स अबाउट लर्निंग. हमने लर्निंग में पढ़ा था, लर्निंग में कहा जाता है कि लर्निंग तभी अच्छे से हो पाएगी अगर उसमें कोई पर्पस होगा, मोटिवेशन होगी. ठीक है. तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जो भी हम पढ़ाएं, हम पढ़ाते हुए बच्चों को मोटिवेट करते रहें आगे सीखने. आई होप दीज आर क्लियर. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन आर क्लियर. यू कैन मैसेज इन द चैट बॉक्स प्लीज. Next. Thank you. Next is components. Now we will be discussing about the components of skill of introduction. Basically, there are 5 components. First is preliminary attention gaining. जब हम क्लास में जाते हैं तो हमने बच्चे की अटेंशन कैसे गेन करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. क्योंकि एक बार आप उनकी अटेंशन गेन करोगे तभी आप अपनी बात बच्चों को सुना पाओगे. जनरली क्या चलता क्या है कि एक टीचर क्लास में जाता है, दूसरा टीचर ऑलरेडी वेट कर रहा होता है क्लास में जाने के लिए, और बच्चों का अभी एक पिछला लैग चल रहा होता है कि ये मैम ने ये बताया है, ये करना है. तो उस टाइम आपकी जो एंट्री है वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा एकदम से आपको अटेंशन दे. अब वो एंट्री कैसी होनी चाहिए? जनरली टीचर कैसे एंटर करता है? टीचर क्लास में जाता है, बच्चे उनको ग्रीट करते हैं, टीचर गुड मॉर्निंग विश करता है, ओके स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक. बट दैट इज नॉट द राइट वे. हमें बच्चे की पहले जाके क्लास में उसको थोड़ा सा प्रिपेयर्डनेस, जो हमने बातें की हैं, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप करना है, अटेंशन कैप्चर करनी है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए जैसे हमने ग्रीट ही करना है, बड़ी सिंपल सी बात है. हम बच्चों को जाके गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो गुड मॉर्निंग रोज गुड मॉर्निंग ना विश करके हम कुछ डिफरेंट ग्रीटिंग्स के लिए, जैसे स्पेनिश में या फ्रेंच में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ग्रीट करने के लिए, वो हम यूज कर सकते हैं. जैसे ही आप एंटर करोगे बच्चे को एक नया वर्ड सुनने को मिले तो उसकी अटेंशन आपकी तरफ जाएगी. तो वहां पे एक तो आपने उसकी अटेंशन गेन कर ली, सेकेंडली बच्चे को कुछ नया सीखने को मिल गया. दैट इज अ डुअल बेनिफिट ऑफ दैट. ठीक है. फिर आप क्लास में जब जाते हो तो एकदम से जाते पढ़ाना नहीं शुरू करोगे, आप बच्चों से बात करोगे. ओके, हाउ वाज योर डे? ठीक है, पिछली क्लास कैसी रही? ये नहीं पूछोगे कि पिछले मैम ने क्या पढ़ाया. ओके, दैट इज अ रॉन्ग थिंग. तो पर यहाँ पे आप उनसे बातें करोगे, थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है सेट करोगे फॉर लर्निंग. नेक्स्ट स्टेज इज यूजिंग प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस. अभी हमने जैसे पहले बात की कि बच्चे के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि डिपेंड करेगा आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो. इफ यू आर टीचिंग हायर क्लासेस तो उनका बहुत एक्सपीरियंस है. अगर लोअर क्लासेस के बच्चे हैं, नर्सरी एलकेजी के हैं, तो उनके पास भी अपना एक्सपीरियंस है. बहुत ज्यादा तो नहीं है बट दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंस. तो हमें उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है या नॉलेज है उसे हमें यूज करना है. अब ये एक्सपीरियंस बच्चों को आया कहाँ से? या तो उनको फ्रेंड से मिला है, या टीचर से मिला है, अपनी बुक से मिला है, अपने पेरेंट्स से मिला है, और इंटरनेट से भी मिला है. आजकल के टाइम में इंटरनेट इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज वेल. तो यहाँ पे एज अ टीचर आपकी स्किल्स काम आएंगे कि आपको बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, साइकोलॉजिकली आप बच्चों को कितना समझ पाते हो, आपको ये कितना समझ है कि बच्चे का लेवल क्या है, उसका एज क्या है, उसकी क्लास कौन सी है, उसको
किस बैकग्राउंड से वो आ रहा है, मैं किस तरह की एग्जाम्पल दूं, ठीक है। ये सारी चीजों की हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को या एक्सपीरियंस को यूज करने की कोशिश करें। आगे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, उससे ये पॉइंट्स और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। देन इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस और टेक्निक। यहाँ पे हम अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करना, पढ़ाना नहीं है अभी, हमने सिर्फ क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए हम क्या टेक्निक्स या डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। जर्नली पीके टेस्टिंग आपको कैसे करवाई जाती है, आप में से सबने आई थिंक लेसन प्लानिंग कर रही होगी, तो टीचर्स क्या कहते हैं कि किस तरह से लेसन प्लानिंग होती है, जर्नली स्टार्टिंग कैसे होती है लेसन की, एनीबॉडी? क्वेश्चनिंग, यस, साक्षी जैन इज सेइंग क्वेश्चनिंग हम पीके टेस्टिंग करते हैं। पीके टेस्टिंग जर्नली हम क्वेश्चनिंग से ही यूज करते हैं, और उसके लिए हमें कन्वेंशनली प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, पीके टेस्टिंग, ओके। और पीके टेस्टिंग करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चनिंग। टीचर क्या कहता है, सब जर्नली यही बताते हैं, आपने 4 क्वेश्चंस पूछने हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आते होने चाहिए बच्चों को, चौथा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आपका नो रिस्पॉन्स आएगा, देन वी विल से ओके, ऑन गेटिंग नो सेटिस्फैक्टरी आंसर we will announce the topic, well students today we are going to study about this particular thing, ठीक है। तो जर्नली क्वेश्चनिंग मेथड ही बताया जाता है, बट दैट इज नॉट द राइट वे। हाँ, क्वेश्चनिंग इजी मेथड है, प्लान करना बहुत इजी है, तो जर्नली ये मेथड कन्वेंशनली फॉलो किया जाता है। पर इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड, ठीक है, किसी चीज को डिस्क्राइब करके, इलस्ट्रेट करके हम अपने लेसन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन विजिट्स एंड एक्सकर्शंस भी हो सकती हैं, कि हम बच्चों को कहीं ले गए और वहां पे उस लेसन को इंट्रोड्यूस किया। यूज ऑफ एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प से भी हम अपने लेसन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके, कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, या टीचर कुछ चीजों को डेमोस्ट्रेट करके बच्चों को दिखा देगा, वहां पे हम अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड, रोल प्लेइंग मेथड एंड ड्रामेटाइजेशन। ये मैंने बहुत एक छोटी सी लिस्ट रेडी की है, पर इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके साथ आप अपने लेसन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो न्यूनेस आएगी, वैरायटी आएगी, बच्चों का इंटरेस्ट, वो कहते हैं ना वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ, जब वैरायटी आएगी, आप रोज एक नए मेथड से बच्चे को लेसन को इंट्रोड्यूस कराओगे, तो बच्चे का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बनेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है जो आपको, वो ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हमें एक ही मेथड से हम चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या एक टॉपिक को हम हर मेथड से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लिमिटेशंस आती हैं कई बार टॉपिक की, और कई बार टीचर की भी लिमिटेशन होती है, हम उस टॉपिक को उस लेवल पे जाके नहीं समझा पाते, ठीक है। अब एक मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देने लगी हूँ। मैंने बच्चों को एक टॉपिक पढ़ाना है, दैट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं प्लीज अटेंशन गेनिंग से स्टार्ट करती हूँ, कि नॉर्मली टीचर क्लास में रजिस्टर के साथ जाता है। एक दिन टीचर क्या करे, क्लास में खूब सारे फ्लावर्स के साथ चले जाए, ठीक है, और जाते ही बच्चों को फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उससे क्या होगा, एकदम से जो बच्चों की अटेंशन है वो आपकी तरफ आएगी कि आज क्या हो रहा है, आज कुछ डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। अटेंशन आ गई, इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप हो जाएगा वहां पे। तो ये चीज हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं। ज्यादा है, टीचर थोड़ा सा ड्रामेटिक है, तो टीचर अपने बालों में फूल लगा के चला जाए। तो बच्चों का ध्यान स्पेशली, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे जो हैं बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, दे विल ऑब्जर्व दैट मैम आज आपने कुछ डिफरेंट किया है। तो वहां पे आप बता सकते हैं ओके फ्लावर, ओके यू हैव सीन दैट, वहां से आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, यहाँ पे आपकी स्किल और आर्ट दोनों को यूज करोगे कि आपने चीज को कैसे आगे प्रोसीड करना है। अब इसी टॉपिक को, पार्ट्स ऑफ फ्लावर को मैंने क्वेश्चनिंग मेथड से यूज करना है, तो मैं सिंपल पूछ सकती हूँ ओके, कोई ट्राई करना चाहता है क्वेश्चनिंग को, आई थिंक सारे ट्राई करना चाहेंगे। क्वेश्चनिंग मेथड, कैसे क्वेश्चंस होंगे इसमें, अगर हमने क्वेश्चनिंग मेथड को स्टार्ट करना है तो हम किस तरह के मेथड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एनीबॉडी?
ओके हम इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस कलर ऑफ रोज, व्हाट इज योर फेवरेट फ्लावर. ओके, अब देखिए फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ऑक्सीजन. ओके, अब देखिए डिपेंड करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो हम पहले ध्यान में रखेंगे कि टॉपिक किस क्लास को पढ़ाना है. बहुत छोटे बच्चे को पढ़ाना है कि 10+1 वालों को पढ़ाना है, तो उस हिसाब से हमारी क्वेश्चनिंग का लेवल होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं 5th-6th के बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि प्रीवियस नॉलेज अज्यूम, जिसको हम पीके अज्यूम बोलते हैं, उसमें मुझे पता है कि बच्चों को प्लांट्स के बारे में पता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पता है, तो वहां से मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकती हूँ. मेरा पीके अज्यूम क्या हो गया कि बच्चों को प्लांट्स के बारे में पता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट पता है. ठीक, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ओके नेम द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो यहाँ पे बच्चा पार्ट्स बता देगा. लाइक सपोज करो बच्चों ने आंसर दिया लीव, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर. ठीक है, अब मैं पूछूंगी ओके नेम द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. सॉरी, ग्रीन पार्ट कौन सा होता है, या फूड मैन्युफैक्चर करने में कौन सा पार्ट हेल्प करता है. दे विल से लीव्स. फिर मैं उससे पूछ सकती हूँ, अच्छा व्हाट इज द मोस्ट कलरफुल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, तो वहां पे बच्चे आंसर देंगे, ऑब्वियसली आंसर विल बी फ्लावर ओनली. तो बच्चे वहां पे फ्लावर दे देंगे. तो वहां पे मैं कहूंगी ओके यू नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ठीक है, हो सकता है वहां पे बच्चों को आंसर नहीं आता, पर हाँ वी कैन से कि किसी को भी नहीं आता होगा. हो सकता है एक दो बच्चे ऐसे हों जो बहुत इंटेलिजेंट हो. ठीक है, तो उनको आते हो, तो वहां पे हमें आगे हम देखेंगे कि उस टॉपिक पे हम कैसे आएंगे. बट देन वी कैन स्टार्ट द टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन डिटेल. ये हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड जो जर्नली सब यूज करते हैं. देन इज लेक्चरिंग मेथड. लेक्चरिंग में मैं क्या कर सकती हूँ, ओके स्टूडेंट्स, बच्चों को क्योंकि फ्लावर तो पता है ना क्या होता है. फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट which जो सीड्स फ्रूट्स बनाता है. बट टुडे और सारे फ्लावर्स अलग अलग लगते हैं, बट टुडे वी विल स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच आर जर्नली द सेम. ठीक है, तो ये हमारा एक लेक्चरिंग मेथड हमने यूज कर सकते हैं. विजिट्स और एक्सकर्शन भी इसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैं बच्चों को आज कहेंगे ओके स्टूडेंट्स मेक लाइन एंड टुडे वी विल गो टू द गार्डन. क्योंकि स्कूल्स में नॉर्मल छोटा सा गार्डन या प्लांट्स तो जरूर होंगे, तो आप एक छोटी सी विजिट बच्चों को बाहर ले जाइए, वहां पे बच्चों को प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं उनको कंपेयर कीजिए और समझा दीजिए अपना टॉपिक. विजिट्स हो सकती हैं. ठीक है, यस. उसके बाद है यूज ऑफ एग्जांपल्स एंड एनालॉजीज एंड सिमिलैरिटीज. अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं खूब सारे फ्लावर्स लेके आई थी क्लास में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स लेके आई थी. मैंने बच्चों को दिए और मैंने उन्हें कहा कि देखो इनमें क्या चीजें कॉमन है, क्या चीजें सेम सी हैं. तो फिर बच्चे निकाल तो देंगे ओके ये ऐसे ये चीज है मैम, ये पर्टिकुलर चीज है, पर उनको नाम नहीं आते होंगे उन चीजों के. तो वहां से मैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ. ये एक मेथड है. ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स को हम यूज कर सकते हैं. इसी में मैं एक पॉट ऑफ प्लांट लेके जा सकती हूँ. ठीक है, प्लांट का पॉट ले जाऊंगी वहां, वो क्योंकि मेरे लिए एज अ ऑडियो विजुअल एड है. रियल ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं हम, खुद से बनाई हुई चीजें भी यूज कर सकते हैं. तो वहां पे हम बच्चों को दिखाएंगे ओके दिस इज प्लांट और इसमें ये फ्लावर है, तो फिर एक एक करके हम फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको बच्चों को दिखा सकते हैं. क्लियर? आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ सबको. यहाँ तक क्लियर है सर? यस, ओके, थैंक यू. देन इज एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. अब जब मैंने फ्लावर का पार्ट पढ़ाना है तो आई थिंक मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. इसको डेमोन्स्ट्रेट तो हम कर सकते हैं, पर कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम हर टॉपिक को डेमोन्स्ट्रेट करके, एक्सपेरिमेंट करके या स्टोरी टेलिंग मेथड से नहीं पढ़ा सकते. ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे सपोज करो मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाना है आज बच्चों को. ठीक है, या कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन पढ़ाना है. वहां पे हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे, कुछ हैवी होंगे, कुछ लाइट होंगे, पानी लेंगे, उसमें कुछ चीजें सिंक कर जाएंगी, कुछ फ्लोट करती रहेंगी. वहां से मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकती हूँ. कुछ चीजें सिंक कर गई, कुछ फ्लोट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं. ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाना है तो वहां पे मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ कि ओके वी विल टेक अ बॉल, तो उसका हम वे करेंगे स्प्रिंग बैलेंस से, फिर उसको हम एक बीकर लेके पानी का उसमें इमर्ज कर देंगे. स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग का फर्क आएगा. ठीक है, रीडिंग थोड़ी कम हो जाएगी. तो वहां पे हम बच्चों को कहेंगे ओके स्टूडेंट्स वी हैव सीन कि पहले रीडिंग ये वाली थी, अब रीडिंग ये आई है, इसमें रीडिंग में डिफरेंस क्यों आया है. ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्यों इसके वेट में डिफरेंस आ रहा है। जो वेट में डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से, और आज हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, देन स्टोरी टेलिंग मेथड, रोल प्लेइंग एंड ड्रामेटाइजेशन। ये साइंस में खास करके यूज करने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, लिटरेचर में लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में आप इजीली इनको यूज कर सकते हो, हिस्ट्री में इस टॉपिक को आप इजीली यूज कर सकते हो, पर साइंस में भी अगर हम कहें कि हमने स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करना है तो हम कहीं कहीं इसको जरूर फिट इन कर सकते हैं। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ही मैं बात कर लूँ, मैं एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकती हूँ कि एक राजा था, उसने एक आर्किमिडीज नाम के एक इंसान को एक काम दिया कि अपने क्राउन की प्योरिटी फाइंड आउट करके आनी है। तो वो एक बार ऐसे ही बैठा हुआ था बाथ में, तो उसको लगा कि ओके ये एक मेथड है जिससे मैं इसकी प्योरिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ, और वो बाथ टब से वैसे ही यूरेका यूरेका कह के भाग गया। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको कट शॉर्ट में समझा दी स्टोरी, पर आप इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में भी लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हो। न्यूटन लॉज पढ़ाने हैं आपने, तो हम न्यूटन की स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं कि न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एक एप्पल गिरा, तो उसने वहां पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जब कंसेप्ट समझाना है या इंट्रोड्यूस करना है, तो हम उस मेथड को स्टोरी टेलिंग मेथड से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रोल प्लेइंग कर सकते हैं, रोल प्लेइंग में हम असाइन करते हैं रोल्स बच्चों को। जैसे कि मैं बच्चों को फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट पढ़ाना चाहती हूँ, तो उसमें मैं एक बच्चे को सन बना दूंगी, एक को मून बना दूंगी, एक को अर्थ बना दूंगी, और जब मैं क्लास में जाऊंगी तो वहां से ही हम अपने टॉपिक को उसी हिसाब से शुरू करेंगे। इक्लिप्स का कंसेप्ट इस तरह से पढ़ाया जा सकता है। मैं पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप ये देखिए कि एक लेसन को इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ एक मेथड क्वेश्चनिंग नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। किसी ने प्रोजेक्ट मेथड लिखा था, वो भी हम कर सकते हैं, पर वो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन के बाद अपना लेसन तो लेके आना है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड को टाइम लग जाता है कंप्लीट करने में। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम अगर यूज करेंगे तो एक तो हमारे लेसन में वैरायटी आएगी, बच्चों को हर बार कुछ नया मिलेगा, तो उनका इंटरेस्ट, मोटिवेशन, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगी, लिंक हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद है रेलेवेंस एंड कॉन्टिन्यूटी और सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स। अगर तो आपने क्वेश्चनिंग मेथड यूज किया है, तो जो आपका एक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सीक्वेंस है कि नहीं, रेलेवेंट है कि नहीं। रेलेवेंस का मतलब है जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसके रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर करा रही हूँ तो मैं उसके प्लांट से शुरू होकर फ्लावर्स तक आऊंगी, यहाँ पे मैं कोई एनिमल्स का या कोई और क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। और देखो, जब हमने सीक्वेंसिंग की बात की, मैंने कहा कि सबसे पहले हमने बात की है प्लांट की, फिर बात की है पार्ट्स ऑफ प्लांट, फिर जो बच्चों ने आंसर दिए पार्ट्स में उसमें से एक क्वेश्चन निकाला, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। वो एक सीक्वेंसिंग है जिसको हमने क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, और उसके बाद आता है, लास्ट में हमारा आता है टॉपिक डिक्लेरेशन, कि हमारा जो टॉपिक है उसको एकदम से शुरू नहीं कर देना, स्टूडेंट्स को फील करवाना है, ओके स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो किया वो आपको ऑलरेडी आता था, अब हम कुछ नया करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे एक फॉर्मल वे में जैसे आपको कहा जाता है कि यू विल से वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक, आप ब्लैक बोर्ड पे जाते हो, उसको लिखते हो, वो बेसिकली उसका पर्पज ये है कि आपने बच्चे को बताना है अब यहाँ से कुछ नया शुरू हो रहा है, नोवेलिटी आ रही है जो आपको पहले नहीं पता था, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ओके, तो ये हमारे कुछ एक कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखते हुए स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन को बनाना है। उसके पास आता है हमारा ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ठीक है, जब भी कोई स्टूडेंट माइक्रो टीचिंग स्किल को प्रैक्टिस करता है तो जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनके पास ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होता है, जिसमें बच्चे का नाम आएगा, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो। देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक क्या है, क्लास कौन सी है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारी पीके टेस्टिंग, पीके अज्यूम इसी के बेस पे होता है। देन इज नेम ऑफ द सुपरवाइजर, आपको सुपरवाइज कौन कर रहा है, डेट क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, टीचिंग कर रहे हो कि रीटीच कर रहे हो। माइक्रो टीचिंग का क्योंकि फेजेस आते हैं, पहले आप टीच करते हो देन रीटीच करते हो, और एक स्किल को हम काफी देर तक इसी हिसाब से प्रोसीड करवाते रहते हैं जब तक मास्टरी नहीं होती। इसमें जब यहाँ पे देखो मैंने वर्ड लिखा है टेलीज, जब बच्चे, आपने लेसन प्लान किसी का देख रहे हो, मैंने लेसन प्लान इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास बहुत वैरायटी है, आप कैसे लेसन प्लान बनाना चाहेंगे, पर हाँ चीजें हमें पता चल जाएंगी कि ये लेसन प्लान में चीज प्रेजेंट है कि नहीं है।
हम देखेंगे कि बच्चे ने अटेंशन गेन करने के लिए कुछ किया कि नहीं किया, तो यहाँ पे टैली पे 1 डाल देंगे। प्रीवियस नॉलेज को यूज किया कि नहीं किया, अगर किया तो कितनी बार किया, तो उतने टैलीज यहाँ पे आ जाएंगे। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस, क्या जो उस टॉपिक को पढ़ा रहा है उस टॉपिक को उसी वे से पढ़ाया जाना चाहिए था कि कोई और टूल या टेक्निक यूज करनी चाहिए थी, तो यहाँ पे हम उसके हिसाब से टैलीज देंगे। जो स्टेटमेंट थी वो रेलेवेंट थी, सीक्वेंसिंग प्रॉपर थी, तो यहाँ पे हम टैलीज कंटिन्यू करते रहेंगे। जितनी बार हमें लगेगा कि रेलेवेंट स्टेटमेंट्स आई हैं उतने टैलीज आ जाएंगे। एंड टॉपिक डिक्लेरेशन कैसी थी, ठीक है, इफेक्टिव थी कि नहीं, और इन टैलीज को हम बाद में यूज करेंगे फॉर रेटिंग। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, रेटिंग की बात आ गई। प्रीलिमिनरी अटेंशन गेनिंग, अगर तो ये हमारा 7 पॉइंट स्केल है, ठीक है। अब कईयों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैम ये तो 6 है, 7 कह रहे हैं आप। हमने 0 से स्टार्ट किया है क्योंकि पीपल टीचर में कई बार क्या होता है, जो जैसे नए सीखने वाले बच्चे हैं, कई बार उनको किसी अटेंशन गेन का उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो तो हम उनको 0 मार्क्स भी दे देते हैं, और अगर उन्होंने बहुत अच्छे से अटेंशन को गेन किया है तो हम उनको क्या मार्क्स दे देंगे, 6 मार्क्स दे देंगे। तो इस हिसाब से हम इसकी रेटिंग करेंगे टैलीज को यूज करते हुए। जिसमें टैलीज में ज्यादा नंबर थे उतने ज्यादा यहाँ पे हम उसको रेट करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर तो रेटिंग हायर ऑर्डर मतलब ऑर्डर पे है, जैसे 5 6 5 6 या 4 5 6 आ रही है, तो हो सकता है हम उसको रीटीच करने को नहीं करें, पर अगर 0 to 3 4 में आ रही है तो हम उसको रीटीच या रीप्लान करने को कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ तक हमारा स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है, विकास सर क्वेश्चन एंड में रहेंगे, साथ साथ में चलें? ओके, वी विल प्रोसीड टू नाउ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, अब जैसे हम बात करते हैं कि क्वेश्चनिंग है क्या, कोई मुझे बता सकता है कि क्वेश्चन पूछना इजी है कि इट्स डिफिकल्ट? सिर्फ ये सुनो, इट्स इजी टू आस्क अ क्वेश्चन? मे बी yes, no, no, it is probable, no, complex, no ma'am, okay। पर आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पास तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, छोटा बच्चा है, he or she is full of questions, ठीक है, उसके पास इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं और हमें उसे कहना पड़ता है कि बस करो, ये क्वेश्चन बस, अब और नहीं पूछोगे। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी एक तो वैसे हैबिट कम हो जाती है क्वेश्चनिंग करने की, पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि राइट क्वेश्चन करना, सही क्वेश्चन करना, सही तरीके से क्वेश्चन करना, सही टाइम पे क्वेश्चन करना, वो एक स्किल है, ठीक है। अपने absurd क्वेश्चन पूछना है जिस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, वो जैसे मर्जी पूछे जाओ, पर जब अगर हम स्किल की बात करेंगे, स्किल अपने आप में, इसके लिए भी आपको मास्टरी चाहिए, ये आर्ट है, ये एक स्किल है, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, कब क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चन क्यों पूछने हैं हमें, ठीक है। तो ये चीजें हम यूज करते हैं क्वेश्चनिंग के लिए। इट्स बेसिकली ये टूल है। हम क्लास में भी क्वेश्चनिंग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चनिंग को एज ए टूल यूज करें, क्योंकि अभी मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या चीज यूज कर रही हूँ, क्वेश्चनिंग को। मैं आपके क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, तो हमारा उस हिसाब से सेशन क्या हो रहा है, इंटरेक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने बच्चों को लेसन को लाइवली बनाना है, पार्टिसिपेटरी बनाना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग यूज करूंगी। उसके साथ मोनोटनी टूटती है, ठीक है। टू वे, जैसे नॉर्मली टीचर 1 वे कम्युनिकेशन यूज करता है, क्वेश्चनिंग के साथ चाहे बच्चा आंसर देने की कोशिश करेगा, वो क्या बन जाएगा, 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चनिंग से बच्चे को सिमुलेशन आती है, वो सोचना शुरू करता है, ठीक है। और एक जो टीचर है, ही और शी शुड बी अ गुड क्वेश्चनर, उसको क्वेश्चन पूछने की आदत होनी, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। सेम चीज जब आप बच्चों से पूछोगे, क्वेश्चनिंग करोगे, तो वो बच्चों में भी हैबिट डेवलप होगी और उससे बहुत सारी चीजें जो है चेंज होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक अच्छा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन का मुझे वो मतलब आप बताइए थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन जो रेलेवेंट होगा, ओके, जो रेलेवेंट टू द टॉपिक, ओके सारिता जी, एनीबडी एल्स? जब स्टूडेंट्स के लेवल का हो, व्हेन स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो द आंसर, ग्रामेटिकली करेक्ट हो,
ओके देखिए करेक्टरिस्टिक्स पे हम बाद में आते हैं। कईयों को लगता है कि वो क्वेश्चन अच्छा है जिसका आंसर मिल गया, ठीक है, या कईयों की ये थिंकिंग है वो क्वेश्चन अच्छा है जिसका आंसर नहीं मिला क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन वो अच्छा है जो आपको सोचने पे मजबूर, ठीक है, जो आपकी थिंकिंग को लेके आए कि ओके ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जिसने आपकी थिंकिंग को स्टिमुलेट कर दिया, वो एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस रिस्पांस की भी हमने पढ़ा हुआ है, जितना अच्छा स्टिमुलस होगा उतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जितना अच्छा क्वेश्चन टीचर पूछेगी उतना अच्छा आंसर मिलने के चांसेस। तो क्वेश्चन शुड बी थॉट प्रोवोकिंग, वेरी गुड, थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, अगर हमने बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दिया देन ऑल्सो वी आर गेट मतलब हम अपने जो पर्पस था उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब क्वेश्चंस बड़ी तरह के होते हैं, ठीक है, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं, मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं, हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। पर डिपेंड करता है कि मैंने कौन सा लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछना है, वो डिपेंड करेगा मेरी क्लास क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्वेश्चंस हमेशा हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए ही फ्रेम आउट करते हैं। आगे हम अभी बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे क्वेश्चनिंग के, टू मेक स्टूडेंट मोर एक्टिव इन द क्लास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैंने अपने बच्चों को एक्टिव बनाना है, कई बार आपको पता है कि क्लास में बच्चे सुन नहीं रहे हैं आपकी बात, तो आप थोड़ा सा उनको क्या करते हो, एक क्वेश्चन पूछ लेते हो, वो एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं, ठीक है ना, उससे क्या है बच्चे एक्टिव हो जाएंगे क्लास में। टू ड्रॉ द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट, मैं कुछ बच्चों से इंफॉर्मेशन जानना चाहती हूँ तो मैं वहां पे क्या करूंगी, क्वेश्चंस पूछूंगी, मैं कोई नया आइडिया हो सकता है मेरे दिमाग में ना हो, बच्चों से पूछना चाहूंगी। टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू थिंक डीपली एंड क्रिटिकली, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में आता है कि बच्चे को सोचना डीपली और क्रिटिकली, ये हम इसलिए हम क्वेश्चनिंग करते हैं। टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इंटरेक्शन, ये मतलब ताकि बच्चा मोटिवेटेड रहे इंटरेक्शन के लिए और क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा लाइवली हो और बच्चे को लगे कि हाँ हम भी कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं, इसलिए हम बेसिकली क्वेश्चनिंग को यूज करते हैं। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स की या करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। करेक्टरिस्टिक एक अच्छा क्वेश्चन कौन सा होगा, जैसे अभी किसी ने पहले भी बताया है, दैट शुड बी रेलेवेंट टू द कंटेंट, हमारा कंटेंट के साथ रेलेवेंट होगा। सेकेंडली बच्चों के लेवल पे होगा। अगर एक क्वेश्चन मैं ऐसा पूछ लूं जो बच्चों के लेवल का नहीं है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि आई एम अ वेरी गुड क्वेश्चनर, मुझे बड़े अच्छे से क्वेश्चन पता है, ठीक है, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज कर दूं, मैं ऐसे वर्ड यूज कर दूं जो बच्चों को समझ ही ना आए, तो वो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, किसके हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से। क्वेश्चन शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। कई बार हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहां इस की जगह पे वॉज लग गया और वॉज की जगह पे इज लग गया, तो वहां पे वो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। और बच्चे कई बार जब टीचर ग्रामेटिकली गलत क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे क्योंकि बच्चों को ग्रामर की थोड़ी बहुत ही नॉलेज होती है, तो वहां पे वो उस चीज की डिस्कशन पे चल जाते हैं कि मैम ने ये बोलना था, ये बोल दिया, स्पेलिंग गलत है मैम के, तो वहां पे वो जो हमारा पर्पस है क्वेश्चनिंग का वो डीरेल हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकली हमेशा करेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछे उसका एक आंसर होना चाहिए। जैसे मैं आगे अभी आपसे अगर पूछूं विच इज द हाईएस्ट माउंटेन, which is the highest mountain, this is one question, आंसर दीजिए, which is the highest mountain, एवरेस्ट, एवरेस्ट, सबको एवरेस्ट ही लग रहा है। मैंने देखो वैसे तो यहाँ पे मुझे बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि मैम कहाँ का, ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहे हो कि इंडिया की बात कर रहे हो, आई नीड टू बी स्पेसिफिक। समझ आई बात कि हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमें 5 वर्ड्स में क्वेश्चन कंप्लीट कर देना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि वर्ड में कम से कम 10 वर्ड्स होने, क्वेश्चन में कम से कम 10 वर्ड्स होने चाहिए। मेरा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरा मतलब क्लियर हो, बट इट शुड बी ब्रीफ, टेलीग्राम जैसा भी ना लगे, कंसाइज हो। जैसे कई बार टीचर कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, ठीक है, जब हम इस तरह के वर्ड लगा देते हैं, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, एनी वन ऑफ यू नो, कुछ इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो वो हमारे करेक्टरिस्टिक से हट जाता है। सिंपल डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन जो है हमारे वेल सीक्वेंस्ड होने चाहिए, और क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए
जो स्टिमुलेट करेगा थिंकिंग को। तो जो क्वेश्चन में ये सारी चीजें होंगी तो उसको हम क्या कह देंगे कि दिस इज आर गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज किस तरह के क्वेश्चंस हमने नहीं पूछने हैं, जो यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में गेस वर्क चलता है, और जो हमने बात की है कि क्वेश्चंस पूछने का पर्पस क्या है, थिंकिंग डेवलप करना, तो इसमें थिंकिंग नहीं डेवलप होती, ये बस मेमोरी लेवल पे है, रूट मेमोरी लेवल पे बच्चा आंसर दे देगा यस है कि नो है, और इसमें बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं शो करता। ठीक है, नेक्स्ट इज सजेस्टिव और लीडिंग क्वेश्चंस, या इनको इको क्वेश्चंस भी कहते हैं, जिनमें खुद ही आंसर होता है कई बार। ठीक है, जैसे मैं पूछूं फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, फिर मैं खुद ही पूछ लूं थोड़ी देर बाद कि विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, खुद ही क्वेश्चन पूछा, उसी क्वेश्चन में फिर से आंसर दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो नहीं होने चाहिए, जिसमें खुद से ही आंसर दिए हो, वो क्वेश्चन हमने नहीं पूछने हैं। डबल बैरल क्वेश्चंस, डबल बैरल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो अलग अलग थॉट्स चल रही हैं और उनको हमने क्लब कर दिया, जिसमें हम एंड वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लावर एंड द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब बच्चे को हो सकता है फ्लावर के बारे में तो पता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में नहीं पता, तो बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा कि वेदर आई शुड रेज अ हैंड और नॉट। क्योंकि जब हम एंड लगा दिया तो बच्चे को दोनों आंसर्स आते होने चाहिए, तो इसलिए हम ज्यादातर डबल बैरल क्वेश्चन जो है अवॉइड करते हैं। देन इज एम्बिगुअस क्वेश्चंस, एम्बिगुअस क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, मेरा टॉपिक कुछ चल रहा है, वो क्वेश्चन कुछ और ही आ गया, कहीं और से ही आ गया। जैसे कई बार बच्चे क्लास में करते हैं, टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता है, क्वेश्चन कहीं और से ही आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग करा रही हूँ, अब आप मुझसे पूछना है अगर लेसन प्लान के ऊपर अपना कोई डाउट लेके आ जाइए, तो वो हो जाएगा, इस टाइम के लिए वो क्वेश्चन क्या होगा, एम्बिगुअस हो जाएगा। इलिप्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे कई बार टीचर्स कहते हैं योर नेम इज, तो बच्चे को वो फिल करना होता है, तो दिस इज नॉट अ राइट वे टू आस्क अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, व्हाट इज योर नेम। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम जर्नली जब भी लेसन प्लान करेंगे या जब हम माइक्रो टीचिंग स्किल्स के लिए स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग को यूज करेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, देन इज कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग, ये काफी हमने डिस्कस कर लिया है, स्टिल एक बार थोड़ा सा हो जाएगा। जब भी हम क्वेश्चनिंग की बात करते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर आता है, एक प्रोसेस आता है। स्ट्रक्चर में क्वेश्चन कैसा था, वेदर इट वाज रेलेवेंट टू द टॉपिक, वेदर इट वाज कंसाइज, ठीक है, स्पेसिफिक आंसर था कि नहीं, ग्रामेटिकली करेक्ट था कि नहीं। अगर ये चार चीजें हैं तो ये स्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगी, और आगे नेक्स्ट में हम आप देखोगे हम इनको रेट करेंगे, कंसाइज था कि नहीं। ठीक है, जैसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, आप उसको स्ट्रक्चरिंग पे, प्रोसेस पे और फ्लुएंसी पे मार्क करोगे। स्ट्रक्चरिंग पे पहले हम देखेंगे, जैसे अभी यहाँ पे S1 का मतलब है रेलेवेंट, अगर वो क्वेश्चन रेलेवेंट है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। ठीक है, सेकेंड इज कंसाइज था कि नहीं, अगर तो क्वेश्चन कंसाइज था इसको टिक कर दोगे, अदरवाइज क्रॉस कर दोगे। ठीक है, देन इज प्रोसेस। अब प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चन पूछना कैसे है, आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने की। अब कई बार स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग में फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चनिंग आती है, जिसमें हम कहते हैं कितना फ्लुएंटली आप क्वेश्चन पूछते हो, कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछे। अब जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं कि मैंने फटाफट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आ गया, मुझे टाइम देना है बच्चे को। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम बच्चे को कुछ टाइम देंगे ताकि वो उस चीज के बारे में सोच सके, क्योंकि मेन हमारा पर्पस थिंकिंग है, तो वहां पे बच्चा उस चीज को सोच सके, सोच के आंसर। टीचर को एट टाइम्स क्वेश्चन पूछते हुए पॉज लेना पड़ता है, जब मैं हु, व्हाई, हाउ वाले क्वेश्चन पूछूंगी, हु, फिर उसके बाद हल्का सा पॉज आएगा, क्वेश्चन कंप्लीट करेगा, उसके बाद पॉज आएगा। तो ये हमारे जो पॉजिंग है, कितना पॉज लेना है, कब पॉज लेना है, स्पीड कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। देन इज आपकी वॉइस कैसी होगी। ठीक है, नॉर्मली जब टीचर क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछता है तो उसकी जो वॉइस है वो ऑडिबल होनी चाहिए, लाउड एंड क्लियर। जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो आपकी आवाज थोड़ी सी रेज होनी चाहिए, ऊंची, थोड़ी सी ऊंची, लाउड एंड क्लियर। कई बार ऊंची आवाज क्लियर नहीं होती है, दोनों चीजें होनी चाहिए, वर्ड शुड बी लाउड एज वेल एज क्लियर, ताकि लास्ट बेंच तक बच्चों को सुने। और ऐसा ना हो कि मेरा क्वेश्चन जो है कि वो फ्लैट हो जाए, उसका आंसर ही ना मिल पाए अगर मेरी वॉइस जो है ऑडिबल नहीं होगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉइस
का अपना एक रोल है। क्वेश्चनिंग का स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली, किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए और किस तरह से क्वेश्चन पूछना है, दैट कम्स अंडर प्रोसेस। देन इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी में हम बात करते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस और रिपीटेड रिस्पॉन्सेज की। कई बार टीचर्स को आदत होती है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा, फिर थोड़ी देर बाद खुद ब खुद वो अपना ही क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। दैट इज नॉट ए गुड हैबिट, ठीक है। अनटिल और अनलेस आपको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन बच्चों को समझ ही नहीं आया, वैसे तो आपके क्वेश्चंस होने ही क्लियर चाहिए, ठीक है, ताकि आपको रिपीट ना करना पड़े। पर कई बार स्टिल होता है क्लास में कि बच्चों को हमें दोबारा से रीडायरेक्ट करना पड़ता है क्वेश्चन। पर कई टीचर्स की टेंडेंसी होती है एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार बोलते हैं। जब हम एक क्वेश्चन को अननेसेसरली रिपीट करेंगे तो हमारी फ्लुएंसी पे असर पड़ता है। दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। और मोर ओवर एक चीज और होती है इससे, जब हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ना तो बच्चों की आदत बन जाती है। बच्चों की आदत बन जाती है कि बाद में सुनेंगे मैम ने क्वेश्चन रिपीट तो करना ही है। जब दूसरी या तीसरी बार टीचर क्वेश्चन को रिपीट करेगा तो वहां पे बच्चा सुनेगा, ठीक है। और कई सेम चीज ऐसी होती है कि जब बच्चा कोई आंसर देता है, टीचर उसके आंसर्स को क्या करता है, रिप्लाई को क्या करता है, रिपीट करता है। कभी अगर बहुत बढ़िया आंसर दिया, डिफरेंट आंसर दिया, पूरी क्लास में से किसी को नहीं आता था, तो हम आंसर को रिपीट कर भी सकते हैं, पर अननेसेसरली क्वेश्चंस को रिस्पॉन्सेस को रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारी फ्लुएंसी पे इफेक्ट होता है। तो ये 2 चीजें हमने अवॉइड करनी है, रिपीटिंग द क्वेश्चंस एंड रिपीटिंग द रिस्पॉन्सेस। ये कुछ एक कॉम्पोनेंट्स हैं जिसको हम आगे देखेंगे। अभी रेटिंग स्केल्स पे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल हमने बनाया है। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या चीजें प्रेजेंट थी उसको टिक कर देंगे, जो चीजें नहीं थी उनको क्रॉस कर देंगे, और फिर हम एंड में रिमार्क्स देंगे। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जैसे बच्चे ने अगर 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, 10 में से कौन कौन से क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, कौन सी चीजें एब्सेंट थी, और उसके बाद हम उसकी क्या करेंगे, रेटिंग। ये भी 7 पॉइंट रेटिंग स्केल है, वही पॉइंट्स हमने दोबारा से यहाँ पे उसको लिख दिया। I think this is also clear. स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग क्लियर है, क्योंकि इसके बाद हम आएंगे स्किल ऑफ प्रोबिंग पे। ओके, स्किल ऑफ प्रोबिंग। अब देखो, आपको जो बच्चों का रिस्पांस मिला, अब हमने क्वेश्चन तो पूछ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता थे, हमने बेस्ट क्वेश्चन पूछ लिए। अब जब हमने क्लास से क्वेश्चन पूछे, उनका हमें रिस्पांस आया कि नहीं आया, ठीक है। रिस्पांस आया तो उस रिस्पांस के साथ हमने कैसे डील करना है, दैट इज द स्किल ऑफ प्रोबिंग, डीलिंग विद द रिस्पांसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, हो सकता है मुझे उसका बिल्कुल सही आंसर आ जाए, ठीक है, हो सकता है मुझे कोई रिस्पांस ना आए क्लास में, हो सकता है मुझे कंप्लीटली इनकरेक्ट रिस्पांस आ जाए, पार्शली इनकरेक्ट आ जाए, पार्शली करेक्ट आ जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं जिस तरह से मुझे आंसर मिल सकता है। तो एज अ टीचर मुझे उन रिस्पॉन्सेज को कैसे डील करना है, तो ये आता है स्किल ऑफ प्रोबिंग में। इसको हम स्किल ऑफ रिस्पॉन्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू लीड द स्टूडेंट्स टू करेक्ट रिस्पॉन्स। अगर तो मुझे रिस्पॉन्स करेक्ट नहीं मिला तो मैंने प्रोबिंग की हेल्प से बच्चे को करेक्ट रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाना है। टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिस्पॉन्स। कई बार बच्चे ने आंसर तो दे देता है पर उसको क्लैरिटी नहीं होती है कई बार, तो वहां पे हमने उनको क्लियर करवाना है। टू हेल्प द स्टूडेंट व्यू द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। कई बार बच्चे का जब हम आंसर देते हैं तो पर्सपेक्टिव या सोचने का दायरा बड़ा लिमिटेड सा होता है, हम चाहते हैं कि बच्चा इस चीज के बारे में और सोचे, थोड़ा और इलैबोरेट करे, तो हम यहाँ पे इसलिए हम प्रोबिंग को यूज करते हैं टू इम्प्रूव थिंकिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। जहाँ पे हम क्रिटिकली चाहते हैं कि हर चीज को सोचा जाए, बच्चा सोच के आंसर दे, तो हम प्रोबिंग यूज करेंगे। टू सीक फर्दर इन्फॉर्मेशन, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा और बताए बच्चा, ठीक है, जो मेरा क्राइटेरिया है उससे आके जब बच्चा आंसर करेगा। टू ड्रॉ द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। मैंने कुछ सोच रखा है, मुझे वही इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आई विल कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। तो स्किल ऑफ प्रोबिंग है। टू अनेबल स्टूडेंट टू थिंक डीपली एंड क्रिटिकली, ठीक है। इससे जब हम प्रोबिंग करते हैं बच्चों का थिंकिंग लेवल भी इंप्रूव होता है और वो क्रिटिकली भी चीजों को सोचते हैं। टू इम्प्रूव मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, इन्वॉल्व मोर एंड मोर स्टूडेंट्स इन द डिस्कशन। हम आगे आगे जब इसके कंपोनेंट्स करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इसमें क्वेश्चनिंग प्रोबिंग में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इंक्रीज द क्रिटिकल अवेयरनेस इन द स्टूडेंट्स।
हम क्वेश्चन इस हिसाब से पूछेंगे जिससे बच्चों की क्रिटिकल अवेयरनेस जो है इंक्रीज हो। ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्किल ऑफ प्रोबिंग। अब हम कंपोनेंट की बात करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, स्किल ऑफ प्रोबिंग चल रही है, कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग का। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, हम हिंट देते हैं, ये क्लूज देते हैं। ठीक है, ये हम कब करेंगे, जब मुझे क्लास में या तो कंप्लीटली इनकरेक्ट रिस्पॉन्स मिल गया, बच्चे ने बिल्कुल ही गलत आंसर दे रहा है, या पार्शियली करेक्ट दे रहा है, या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो वहां पे ये जर्नली प्रॉम्प्टिंग को हम यूज करते हैं। जैसे छोटे बच्चों में आपने जर्नली देखा होगा, ए फॉर, बच्चे से हम पूछते हैं ए फॉर, बच्चा चुप कर जाता है, फिर होंगे फिर बच्चा फटाफट बोल देगा एप्पल, तो हमने उसको क्या दिया, हिंट दिया। ठीक है, सीनियर क्लासेस में भी हम करते हैं, जैसे कोई कंसेप्ट समझा रहे हैं तो हम उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, हिंट्स देके क्लूज देने की कोशिश करते हैं। और ये कब हमने ये टेक्निक यूज करनी है, टू हेल्प द स्टूडेंट टू करेक्ट हिज इनकरेक्ट रिस्पॉन्स बाय हिमसेल्फ। जब हम किसी और की हेल्प नहीं लेंगे बच्चे को करेक्ट करने में, हम बच्चे से इस तरह से हिंट्स और क्लूज देंगे कि बच्चा अपने आंसर को, अपने रिस्पॉन्स को खुद ही करेक्ट करेगा। ठीक है, उसको खुद ही अपनी गलती जो है समझ आ जाएगी। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी हमें बच्चा गलत क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन का गलत आंसर देता है, तो हमने कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है। ठीक है, हमने उसे मारना नहीं है, पर हमें उसे मोटिवेट करना है। और ये प्रॉम्प्टिंग से कुछ ना कुछ हम हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और बच्चे को ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि मैडम मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो मुझे क्लूज दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे बच्चा सही ट्रैक पे इजीली आ जाता है। पर अगर आप उसे डांटोगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। Then is seeking further information. Seeking further information is a technique of getting additional information from the student. कि ये टेक्निक हम कब यूज करते हैं, जब हमें आंसर तो मिला है, या तो पार्शियली करेक्ट है या इनकम्प्लीट है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ प्लांट की, तो मुझे कम से कम 4 पार्ट्स चाहिए, जैसे लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर, तो चाहिए मुझे आंसर। अगर सपोज करो बच्चे ने आंसर दिया रूट्स एंड स्टेम, तो मैं उससे फिर पूछूंगी और क्या है। ठीक है, एनी अदर पार्ट, तो वहां पे फिर बच्चा और सोचेगा। तो हो सकता है मुझे बीच में प्रॉम्प्टिंग भी करनी पड़े, वो बड़ा कलरफुल सा पार्ट होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है ना, तो वहां पे मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ बच्चे को, क्लूज दे रही हूँ, तो वहां पे बच्चा मुझे आंसर देगा, ओके मैम दीज आर द फर्दर पार्ट, तो वहां पे मुझे अब मेरा आंसर मिल जाएगा जितना मुझे चाहिए। ठीक है, ये चीज हम कब यूज करते हैं, टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू सप्लाई एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब हम चाहते हैं कि बच्चे को एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे। उसके बाद ऑर्गेनाइज द रिस्पॉन्स प्रॉपरली। कई बार बच्चे आंसर देते हैं पर वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, तो हम ऑर्गेनाइज वे में रिस्पॉन्स लेने के लिए हम इसे यूज कर लेते हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट्स प्रोवाइड प्रॉपर रिस्पॉन्स इन डिटेल। जब हमें आंसर चाहिए पर डिटेल में चाहिए, तब हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। टू हेल्प द स्टूडेंट टू इम्प्रूव द ओरिजिनल रिस्पॉन्स। बच्चे ने आंसर दिया पर हम चाहते हैं कि अपना आंसर वो और अच्छा करे। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 बच्चे ने पार्ट्स बताए, मैं चाहती हूँ 4 पार्ट्स बताए, तो बच्चे ने अपना ही रिस्पॉन्स क्या था, इम्प्रूव किया। तो कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। अब जब मैंने फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसमें मैं किस तरह की चीजें बच्चों से पूछूंगी, मैं पूछूंगी व्हाट एल्स यू कैन ऐड टू योर रिस्पॉन्स, इज देयर एनी अदर आंसर। ठीक है, प्लीज स्टेट इट इन अदर वर्ड्स, हाउ यू कैन मेक योर आंसर मोर क्लियर। इस तरह के अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट कंपोनेंट इज रीफोकसिंग। रीफोकस हम कब करते हैं, देखिए जब मुझे करेक्ट रिस्पॉन्स मिल गया पर स्टिल मैं चाहती हूँ कि बच्चे को जो मैंने पहले पुराना टॉपिक पढ़ाया हुआ है, फिर वही बातें आ गई ना, लिंकेज करवानी है पास्ट के साथ, मैं देखना है कि बच्चा इस टॉपिक को उस टॉपिक के साथ रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, तो मैं कौन सा कंपोनेंट यूज करूंगी, रीफोकस करूंगी। यहाँ पे आंसर सही मिला है मुझे, पर स्टिल आई वांट कि बच्चा जो है चीज को, टॉपिक को रिलेट कर सके जो ऑलरेडी टॉपिक कवर्ड है। ठीक है, तो इसमें हम कब ये यूज करेंगे, टू अनेबल द पीपल टू व्यू द रिस्पॉन्स इन रिलेशन टू अदर सिमिलर सिचुएशन, टू द पीपल टू कंसीडर द इम्प्लीकेशंस। कोई भी टॉपिक पढ़ा है उसकी इम्प्लीकेशंस की जब हमने बात करनी हो, तो स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स टू व्यू रिस्पॉन्स इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जब हमने चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझाना है, तो हम क्या करते हैं, रीफोकस करवाने की कोशिश करते हैं। और रीफोकस में हम किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे को,
In what way this is different from जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया होगा. How does it relate to? In what ways it is similar to? If you examine it from the व्यू पॉइंट ऑफ, मतलब यहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चा उस चीज को और डिटेल में, मतलब और तरीके से सोच के हमें आंसर देगा. ठीक. देन इज फोर्थ कंपोनेंट इज कंपोनेंट ऑफ रीडायरेक्टिंग. रीडायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हमने एक क्लास में एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, उसने वो आंसर नहीं दे पा रहा, हमने उसको प्रॉम्प्ट भी किया, हमने उसको क्लूज भी दिए, स्टिल ही और शी इज नॉट एबल टू आंसर दैट. तो हम अपना वही क्वेश्चन किसी और बच्चे को जब क्लास में पूछेंगे तो हमने क्या किया, उस क्वेश्चन को क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया. इन्वॉल्व्स पुटिंग और रीडायरेक्टिंग द सेम क्वेश्चन टू द सेवरल स्टूडेंट्स. और कई बार हमें आंसर मिल जाता है और तब हम चाहते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, और बच्चे क्या सोचते हैं, तब भी हम रीडायरेक्ट करते हैं. सेम क्वेश्चन अलग अलग स्टूडेंट्स को पूछा जाता है. दैट इज कॉल्ड रीडायरेक्टिंग. टू इंक्रीज पीपल पार्टिसिपेशन, इससे पीपल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी. टू सस्टेन मोटिवेशन, बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे क्लास में. एंड टू एक्सपेक्ट द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, जितने ज्यादा जैसे मैं रिस्पॉन्सेस चाहती हूँ मुझे इससे रीडायरेक्शन से मिल जाए. लास्ट वन इज कंपोनेंट ऑफ इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस. जब मैं चाहती हूँ कि बच्चा क्रिटिकली हर चीज को सोचे, ये भी हम तब यूज करेंगे जब मुझे करेक्ट रिस्पॉन्स मिल चुका है. ठीक है, जरूरी नहीं है इनकम्प्लीट और पार्शली करेक्ट होगा. यहाँ पे मुझे करेक्ट रिस्पॉन्स मिला है, पर मैं यहाँ पे बच्चा हाउ यू कैन से दैट, व्हाई यू आर सेइंग सो. तो हाउ एंड व्हाई वाले क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछती हूँ ताकि बच्चा उस चीज को क्या करे, क्रिटिकली सोचेगा और डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी उसकी. जो उसने आंसर दिया है उसी को वो और डीपली जो है तब सोचेगा और हमें आंसर देने की कोशिश करेगी. और इसमें हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हाउ एंड व्हाई. ये कंपोनेंट है स्किल ऑफ प्रोबिंग. क्वेश्चनिंग के बाद जो हमें रिस्पॉन्सेज मिले, रिस्पॉन्स को कैसे मैनेजमेंट करना है वो हम कैसे करते हैं, स्किल ऑफ प्रोबिंग के साथ. ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है. प्रॉम्प्टिंग टेक्निक कितनी यूज की गई, वेरी मच के नॉट एट ऑल. सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, रीफोकसिंग टेक्निक कितनी कैसे यूज की गई है, रीडायरेक्टिंग टेक्निक कैसे यूज की है, एंड क्रिटिकल अवेयरनेस टेक्निक कितना इसको यूज किया है. और इस हिसाब से हम रेटिंग करेंगे. फिर वही कंसेप्ट चलेगा, अगर तो रेटिंग अच्छी है तो हम रीप्लान करने को नहीं बोलेंगे, अगर रेटिंग कम है तो हम बच्चे को रीप्लान करने को बोलेंगे. ठीक है जी. लास्ट में ये एक मैंने छोटा सा आपको मॉडल लेसन बनाया हुआ है. इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं. जैसे नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर, बच्चे ने कह दिया, अरुण ने कहा सी. नेम एनी अदर सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि टीचर को 2-3 आंसर चाहिए. टीचर को आंसर चाहिए सी, रिवर एंड रेन. तो बच्चे ने फिर कह दिया ओके, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन है, बच्चे ने कह दिया रिवर. एनी अदर, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, बच्चा यहाँ पे कोई आंसर नहीं दे रहा, तो यहाँ पे टीचर ने बच्चे को प्रॉम्प्ट कर रहा है. हाउ डू द सी एंड रिवर गेट वाटर, क्योंकि ये बच्चों को पता है कहाँ से आता है, बारिश से. हमें आंसर मिल गया रेन. तो यहाँ पे टीचर ने अपना क्वेश्चन फिर से पूछा, सो व्हाट इज अदर सोर्स ऑफ वाटर, बच्चा आंसर दे रहा है रेन. ओके, नाउ हाउ डू वी गेट रेन. अब टीचर ने यहाँ पे हरप्रीत को अपना क्वेश्चन क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया. और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम क्रिटिकल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई आंसर नहीं आया. टीचर ने फिर वहां पे प्रॉम्प्ट किया, फ्रॉम वेयर डू वी गेट रेन, फ्रॉम द क्लाउड्स. How are the clouds found? Seeking further information. इस तरह से जब हम अपने लेसन को प्रोसीड करेंगे तो हम ये सारी टेक्निक्स जो है यूज कर रहे हैं. अब जैसे मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ यहाँ पे, अगर मैं आप सबसे पूछूं व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्रोबिंग, तो वहां पे हो सकता है कुछ बच्चे मुझे 2 कंपोनेंट दे दें, कुछ बच्चा मुझे 1 कंपोनेंट दे दे. तो वहां पे फिर मैं फिर और पूछूंगी, और बताओ और क्या है. ठीक है, यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि ये जो प्रोबिंग की स्किल है क्वेश्चनिंग से कैसे अलग है. मैं रिलेट कर रही हूँ ना, रीफोकस करवा रही हूँ. तो इस तरह से ये चीजें हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. आई थिंक इतना क्लियर है सबको. थैंक यू. दिस वाज ऑल अबाउट माय लेसन. और एक चीज जो मैं एंड में आप सबको बोलना चाहूंगी, टीचिंग इतना इजी नहीं है. टू टीच इज टू लर्न. ओके, जब आप टीच करोगे आप लर्न करोगे, और आप जितना ज्यादा लर्न करोगे उतना अच्छा ही आप टीच करोगे. सो कीप लर्निंग एंड बी अ गुड टीचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. Thank you very much, ma'am. It was really a wonderful session, very interactive session. All the participants were fully involved in this session. There is some questions from the participants. हाँ जी सर.
One question is that, yes, what is difference between probing questions and developing questions? जो प्रोबिंग क्वेश्चन है, प्रोबिंग में हम जो रिस्पॉन्स हमें मिला है उसको डील करते हैं। जैसे हमें करेक्ट रिस्पॉन्स मिला है, इनकरेक्ट मिला है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स को बेसिकली जब हम मैनेज करेंगे दैट इज प्रोबिंग। और जब मैं लेसन को पढ़ाते पढ़ाते खुद क्वेश्चंस पूछूंगी बीच में, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग क्वेश्चन। ठीक है? Yes, yes, ma'am. Very much. I don't think any other question is there. So thank you very much, ma'am. Thank you, sir. It is wonderful session, and I am quite sure that all the participants must have enjoyed your session, and all their doubts must have been cleared about the both skills of introducing the lesson as well as skill of questioning. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. And thank you to all for active participation. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you very much. Now we are moving towards the end of this wonderful workshop on lesson planning. And we are now in the valedictory session. And I request our officiating principal, Ma'am Gurbinder Kaur, for delivering welcome address. Ma'am Gurbinder, please. Yes, thank you, Vilasri. Thank you. It is with utmost joy and pride that I welcome you all to the last day of our 7-day workshop on lesson planning in collaboration with Council for Teacher Education Foundation, Punjab and Chandigarh chapter. I extend a very warm welcome to our chief guest, Shri Vinod Bhardwaj ji, Acting President RS March Namashehar and Vice President College Managing Committee. Thank you, sir, for gracing this occasion with your presence. I would like to take this opportunity to express my deep appreciation for today's guest of honor, Dr. Pushpinder Kumar ji, President CTEF, Principal MM Modi College Patiala, who has always been an inspiring figure behind our initiatives. I have great pleasure in welcoming Dr. Parvit Singh Garcha, Secretary CTEF Punjab and Chandigarh Chapter, Principal GHG Khalsa College of Education, Guru Sir Siddharth Ludhiana, for sparing his valuable time. I also welcome and thank Dr. Mrs. Meenakshi Sharma, Secretary, College Managing Committee, for being with us. A very hearty welcome to our resource persons, Mr. Gagandeep, Dr. Yogesh Sharma, Dr. Ajay Khosla, Dr. Gurvinder Singh, Dr. Rekha, Dr. Pooja Arora, and Ms. Monica Mahajan for being the soul of our workshop. A sincere welcome to all the participants, fellow colleagues, and would-be teachers for their presence and valuable support, which is highly appreciated. As you all know, this event is the need of the hour and is of high importance as it focuses on one of the most important aspects of teacher education, which is lesson planning. We are indebted to our resource persons who over the period of last 7 days have shed a great deal of light on everything that goes into formulating a good lesson plan successfully. They have shared their expertise and valuable insights, which will help our teachers and would-be teachers to prepare lesson plans in the most effective and innovative ways. Once again, it is my immense pleasure to welcome all the speakers for this memorable workshop. We are delighted to have you here to participate and share in the event. Thank you all for joining us today and successfully organizing this wonderful workshop. Hope all the participants had the opportunity to learn a great deal and got some valuable takeaways, which will help them in days to come. Thank you. Over to you, Dr. Prince. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Participants, we were fully involved during these 7 days with the various activities, with the various resource persons, various topics, and how we went there. We are going through some flashback in the form of photographs or videos. I request Dr. Kavita to go through all these videos or photographs with which we can see how we proceed starting from this workshop and now moving towards the end of this workshop. Dr. Kavita.
Good evening, friends. All of us have got wonderful experience during this 7-day workshop on lesson planning organized by IQAC of DN College of Education, Nawashahar, in collaboration with CTEF, Punjab and Chandigarh chapter. We have prepared a small video regarding these events of 7-day workshop. Now, I am going to share with that small video with you. Yes, ma'am. Now it is. Thank you for watching this video. Now it's over to Dr. Vikas. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. It is a matter of immense pleasure for all of us that today we are having with us Shri Vinod Bhardwaj as our chief guest. Shri Vinod Bhardwaj is acting president Arya Samaj Nawashahar and vice president DAN College of Education Managing Committee. Now, without wasting much of your time, I request Shri Vinod Bhardwaj ji for his blessings. Shri Vinod Bhardwaj ji. Should I speak? Should I speak? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Very much audible. Okay, okay. Thank you. Most respectful Principal Dr. Khushvinder ji, President of CTEF Punjab, the respectable patron Dr. Meenakshi Sharma ji, Secretary DN College of Education Nawashahar, and Principal of this college, respected Shrimati Gurvinder Kaur ji, and the coordinator of this event, dear Dr. Vikas ji. I'm really gratified and humbled and also encouraged by the huge success of the week-long workshop on creative and constructive lesson planning organized by CTEF Punjab in collaboration with DN College of Education for Women Nawashahar, one of the most prestigious and premier institute of Teachers Training Institute of Punjab. The whole unit of DN College of Education, under the able and superb guidance of Mrs. Gurvinder Kaur ji, deserve all the appreciation for their commendable effort in making this event a huge success. And it is really, I have tried to follow
all the lectures. And I was really pleased to listen to all respectable resource persons who contributed stupendously in making it delightfully informative and absolutely useful for the students in their pursuit for meaningful progression in the art of learning. The relationship between student and the teacher is that of relationship between heart and blood. The heart pumps the blood without expecting anything from the blood for the single purpose to keep us alive. And similarly, a teacher and a student work in unison for the same motive, and that is to vibrate to vibrate to their highest wavelengths. So it's you people are involved in a very pious cause. You are shaping the future of this nation, and you have a huge responsibility on your shoulders. And I'm confident that our teachers are capable, are brilliant, are able to deliver what the nation wants. It was really heartening to note that the opening session of this week-long workshop was blessed by none other than one of the most brilliant scholar, most decent human being, a great teacher, and an excellent administrator, Dr. Gurvinder ji. I am also his student in some way. So I once again thank all of you. I congratulate all of you on this occasion, and I'm sure that you will continue your efforts in future also. In the end, I wish you all the best. Thank you so much. Thank you very much, sir. Your words are always motivating to all of us. Thanks a lot. Now it's time for the reflections from the participants. Since our participants are from very diverse populations, we are having participants as a B.Ed students, we are having participants as a M.Ed students, we are having participants from as assistant professor from various B.Ed colleges, from not only from the Punjab but also from Jammu and Haryana. So it was very difficult for us to plan how to put these reflections into the practice, and we have selected 3 persons for this reflections. And I am calling first is from B.Ed student, that is Mehak Duggal, is B.Ed student from Ramgarhia College of Education, Phagwara. Mehak Duggal from Ramgarhia College of Education, Phagwara. Hello. Good evening, everyone. Firstly, I would like to thank DN College for organizing such an amazing workshop. Secondly, I would like to thank every teacher who present their views on lesson plans, models, approaches, and so many things. This workshop actually provides us an opportunity to interact with such great speakers and teachers. I still remember the day when our teachers told us to register for the workshop. When I saw days and time, I was like 7 days and 2 hours daily. It is too difficult. And here I am standing, the same person who are actually thanking those teachers. I think I'll miss this workshop daily now. You know, generally people think a teacher is just like a person who needs to study curriculum and teach students.
what is the actual role of teachers and what a teacher should do, how a teacher can change a life of a student. It is taught in this workshop. Thank you, teachers, for inspiring us, and thank you for motivating us. Thank you. I would like to thank, and I would like to attend these types of workshops in future as well. Thank you. Thank you very much, beta. It is really very motivating for all of us. Now I am requesting Ms. Sabah, Assistant Professor, Islamia Faridia, College of Education, Kishtwar, Jammu and Kashmir. Madam Sabah, please. Good evening to all. First of all, thanks to DN College of Education for delivering such profound and informative lecture about different topics given by various experts of their respective fields. The speaker spoke in a very definite and precise manner that we came to know how we can update our lessons for future usage and how we can utilize our talent to educate the new generation. Education is not only delivering the mundane knowledge to our generation, but also explore their talent and aptitude and to train them and make them an honest and good human being to serve the nation and future generations. In this workshop, there were different lectures regarding Herbacean approach, model-based lesson planning, value-based lesson planning, ICT-based lesson planning, constructivist approach, skill of stimulus variation, skill of explanation, skill of introducing lesson, and skill of questioning. We have listened all the lectures very carefully and tried our best to inculcate everything that have been delivered by yourself. All of us have benefited by this workshop, and we will try our utmost endeavor in adopting and promoting the essence of these lectures of workshop in future to teacher education program, which is running in Islamia Faridia College of Education, Kishtwar, in Jammu and Kashmir. Last but not the least, we are thankful to all faculty members of DAN College of Education for organizing such innovative, informative, or you can say profound series of lectures delivered by various experts such as Mr. Gagandeep sir, Dr. Yogesh Sharma, Mr. Ajay Khosla, Dr. Gurvinder Singh, Dr. Rekha, Dr. Pooja Arora, Miss Monica Mahajan. Once again, thank you so much, sir, for organizing such an informative workshop. Thank you so much, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Now I request Mrs. Neha Abrol, Assistant Professor, Sonlal DAV College of Education, Ambala. Very good evening, everyone. Very good evening, sir. Good evening. I have made 2 reflections on this workshop. I think दोनों ने बहुत अच्छा बोल दिया है, तो मैंने 2 रिफ्लेक्शन देखी हैं, एक प्री सर्विस एजुकेटर के लिए और एक इन सर्विस टीचर एजुकेटर के लिए. प्री सर्विस टीचर एजुकेटर के लिए ये वर्कशॉप इतनी ज्यादा हेल्पफुल रही है बिकॉज जब हम एंटर करते हैं बीएड में एज स्टूडेंट तो हमें पता ही नहीं होता है कि लेसन प्लानिंग क्या है. तो डे 1 जो था इस वर्कशॉप का वो था हर्बर्शियन अप्रोच. उसके बाद हम धीरे धीरे स्लोली और ग्रेजुअली सीखते गए कि डिफरेंट टाइप ऑफ आई एम गेटिंग नर्वस डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कशॉप जो लेसन प्लान है वो कैसे हो सकते हैं. और इन सर्विस टीचर एजुकेटर जो कि मैं हूँ, मेरे जैसे और लोग हैं, उन्होंने ये सीखा कि वो अपनी क्लासरूम में अपने बच्चों को किस तरह से और डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो दे सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. So I now request Madam Karuna Abray for vote of thanks. Okay, good evening, everybody. Saying hello is always a great pleasure, but saying bye is always tough. Words never prove to be enough. Words never prove to be enough.
especially when so many talented and exceptional personalities have assembled on a single platform. Being coordinator IQAC and convener of the workshop, I would like to congratulate the host team, DEN College of Education for Women Nawashahar, CTEF Punjab and Chandigarh chapter, and to all the participants for the successful completion of 7 days workshop. It is my privilege to have been assigned me the work of vote of thanks on such occasion. At first, my special thanks to our chief guest, Shri Vinod Bhardwaji, Vice President, College Managing Committee, for his inspiration. The college has moved from strength to strength under his able leadership. Further, I would like to extend my heartfelt gratitude to our guest of honor, Dr. Khushvinder Kumar, President CTEF Punjab and Chandigarh chapter and Principal M.M. Modi College, Patiala. Sir, your high sense of responsibility and commitment to perfection is exemplary. I feel immense pleasure in extending my sincere thanks to talented resource persons without whom such grand success was not possible. My deep sense of appreciation is for Dr. Vikas, who coordinated the 7-day workshop in an excellent manner. In the end, heartfelt thanks to one and all who have contributed in one way or the other in making this workshop a grand success, a great achievement. But still, this is not an end. We have to proceed further and further to achieve more and more high targets. So I will conclude it by saying, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, जहां से चले हैं एक मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं एक मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है. So thanks a lot. Good evening, goodbye, good luck. Thank you. Thank you very much, ma'am. I request all the participants to kindly open your cameras so that we can take group photograph for memories. All participants are once again requested to open their cameras. Thank you very much. Thanks a lot, all the participants. We are very thankful that you patiently attended all the sessions of the conference during these 7 days. Thanks a lot. Thank you very much. Goodbye.